वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में वी नो दैट लाइट इज ऑफ वेव नेचर। सो सबसे पहले जो आएगा दैट विल बी 2 मार्क का। राइट पोस्टुलेट्स ऑफ हाइगन्स हाइगन्स प्रिंसिपल। So what was Huygens principle? Huygens principle was that light travels as a wave, or you can say light is of wave nature. तो ये इसका postulate था, first postulate, that light is of wave nature. And दूसरा था that every point on a wave तुम्हें front. आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? बाकी लोगों को आ रही है? हाँ जी, यस आप तो आ रही है। वहां से गड़बड़ है अनन्या? चेक करो, तुमने म्यूट किया होगा मुझे। तो लाइट इज ऑफ वेव नेचर and second postulate is every point on a wave front behaves as secondary source of light and it produces wavelets. ये है इसका second statement that every point on a wave front, अभी wave front भी define करेंगे, every point on a wave front behaves as a secondary source of light and it produces wavelets or waves. So ये 2 मार्क का स्टेटमेंट आएगा हाइगन्स प्रिंसिपल का. Then it could be 1 marker or 3 mark question that define wavefront. पहला क्वेश्चन हो सकता है define a wavefront, and then what are different type of wavefronts and how they are related with the source of light. Different wavefronts and how are they related to the source of light, nature of source of light. तो सबसे पहली बात wavefront. Wavefront is an imaginary plane or imaginary surface, you can say. It need not be plane all the time. A wavefront is an imaginary surface or locus of points. कुछ भी लिख सकते हो. A wavefront is an imaginary surface or locus of points which vibrate or oscillate in the same phase. तो wavefront की definition क्या है? It is locus of points or imaginary surface on which each and every point oscillates or vibrates in the same phase. ये इसकी definition 1 mark की आ सकती है. Next is type of wavefront. Type of wavefronts and their relation with the source of light. तो सबसे पहला होगा plane wavefront. When source of light is at infinity, just like sun. Sun is extended source of light. Extended source of light का मतलब उससे waves parallel आएंगी, ठीक है? So waves coming from the sun, they are parallel like this. So if source is at infinity, light waves will be parallel like this. And then locus of points which are vibrating the same phase will be plane surfaces like this. इन सब का ये सारे के सारे wave front है because each and every point on it is in the same phase of vibration.
So these are plane wave fronts. Plane surfaces. तो अगर सोर्स ऑफ लाइट इंफिनिटी पर है जैसे कि सन, और इट इज एक्सटेंडेड सोर्स, it would be a plane wave front. Next is spherical wave front. Spherical wave front कब बनेंगे? When source of light is a point source. इसका लिख लेना, source of light is at infinity. We can say extended source. Spherical wave front में it would be point source. So if the source of light is a point source, then spherical wavefront would be there. Example क्या होता है point wavefront point source का? Like bulb, LED bulb हो गया, it's a point source. So when you have a point source, तो उस source of light से rays will be, or waves would be radially outward like this. Rays or waves would be radially outward, and wave front will be spherical. जहां पे waves नियर बाय हैं वहां पे वेव फ्रंट भी पास पास होंगे, जैसे जैसे वेव्स दूर जाएंगी तो वहां पे वेव फ्रंट का डिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा लाइक दिस. तो दीज आर स्फेरिकल वेव फ्रंट्स. Then another symmetrical wavefront could be cylindrical. Cylindrical wavefront कब बनेगा? When the source of light is linear, line source, like a tube light. The source of light. So waves would be like this from each and every point on the, like this. These are the waves. Line source or linear source. तो अगर line source या linear source होगा, then the wavefront would be symmetrical, whose cylindrical, whose axis is along the axis of the source of light, like this. Cylindrical wavefronts. Coaxial cylinders you can draw. So coaxial cylinders would be cylindrical wavefront. Otherwise, अगर source of light irregular shape का है, तो उसका wavefront भी irregular shape होगा, but symmetrical. These three you can remember. Yes, Agatz. So when we get questions like draw the wavefront of when a wave like a wavefront intercepts on like a convex mirror or convex lens अभी and all, करते हैं, अभी आता can we generalize it by saying it takes the shape of the surface it intercepts or interfaces? है. नहीं, not necessary. Depend करेगा. लेंस से Because या convex का convex ही बनेगा उसका वैसे ही बनेगा. नहीं नहीं, देखो जरा नोट्स में, लेंस में जरा देखो. एक सेकंड. अब वेवफ्रंट की खासियत क्या होगी? वेवफ्रंट इज वेरी सिमिलर टू व्हाट वी हैव डन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है ना. जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल होती थी. इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर एक चार्ज को मूव करोगे तो देयर इज नो वर्क डन. तो सिमिलरली वेवफ्रंट की खासियत क्या होगी कि एवरी पॉइंट ऑन ए वेवफ्रंट इज वाइब्रेटिंग द सेम फेज, फर्स्ट पॉइंट,
दूसरा पॉइंट इज वेव फ्रंट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. वेव फ्रंट का सरफेस हमेशा वेव के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा. वेव फ्रंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. लिख लेना. देन यू माइट कम अक्रॉस, ये तो सारा लिख लिया ना, आगे बढ़े. ये तो वैसे सारे नोट्स में है ही ऑलरेडी, बट थोड़ा रिवाइज कर रहे थे हम, क्रिस्प रिविजन, सो दैट तुम्हें मालूम है हमें क्या पढ़ना है अब. Then there could be 2 mark question that find position of a wavefront using Huygens principle. Locate position of a new wavefront after delta t time using Huygens principle. So we'll take some irregular shape wavefront AB. AB is initial position of wavefront at t is equal to 0. So when we start observation, उसको हम बोलते हैं t is equal to 0. अब हमें, and this light is traveling like this left to right. अब हमें यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल ये बताना है कि नेक्स्ट वेव फ्रंट डेल्टा टी टाइम के बाद कहाँ होगा. तो वी नो दैट स्पीड ऑफ लाइट इज c. So in delta t time, how much distance it will travel? It will travel a distance which is c into delta t. It will travel a distance c delta t, है ना. So we'll take few points because according to Huygens principle, every point on a wavefront behaves as secondary source of light. So we take few points on the wavefront and we draw spheres of radius d. d radius के spheres हम draw करते हैं. And then after this construction, position of the new wavefront would be tangential surface to the right of this wavefront because the wave is traveling left to right. So A dash, B dash is new wavefront. तो ये 2 मार्क का आएगा. So we have used Huygens construction to locate position of new wavefront after delta t time. To make it a little more complicated, they might say कि भाई initially take wavefront as a plane wavefront. तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्लेन wavefront है तो प्लेन wavefront ले लेना. IV लेफ्ट टू राइट वेव इज ट्रैवलिंग. उसके बाद d लेंथ के स्फेयर्स ड्रॉ कर लो like this, and then tangential surface to the right of the wavefront is a new wavefront. तो this is how you find new wavefront. 2 मार्क का है, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है. स्फेरिकल wavefront आता है तो स्फेयर बना लेना एक. ओनली हाफ ऑफ द स्फेयर, पूरा बनाने की जरूरत नहीं है. सम आर्क ऑफ दैट, लाइट इज ट्रैवलिंग लेफ्ट टू राइट. वापस वही कहानी, डी रेडियस के स्फेयर्स एंड देन ड्रॉ tangent to it like this. So this would be new wavefront. तो क्वेश्चन देख लेना एक बार. क्वेश्चन में क्या मेंशन है, विच टाइप ऑफ वेवफ्रंट इज दैट, जिसका हमें न्यू पोजीशन फाइंड करना है. तो अब तक हमने जो किया, मतलब सबसे पहले हाइगन्स प्रिंसिपल 2 मार्क का आएगा स्टेटमेंट और उसका वो. सेकंड, वेवफ्रंट की डेफिनेशन, टाइप ऑफ वेवफ्रंट. थर्ड, using Huygens construction, locate new position of wavefront after delta t time. ये हो गया. देन जो भी अगस्त से पूछ रहा था कि सपोज कोई प्लेन वेव फ्रंट
कॉनकेव मिरर पे इंसिडेंट है तो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस पे इंसिडेंट है तो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट क्या होगा, वो कर लेते हैं। ये लिख लिया। सबसे पहले प्रिज्म, दिस इज द प्रिज्म, एंगल ऑफ द प्रिज्म, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म। अब मान लो एक प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट है इसके ऊपर, ये 3 वेव्स ले लेते हैं, एंड दिस द वेव फ्रंट ए बी सी। हमें अब ये बताना है कि आफ्टर डेल्टा टी टाइम रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट जो एमर्ज आउट होगा इसमें से, प्रिज्म में से, वो किस शेप में होगा। आफ्टर डेल्टा टी टाइम क्या हो रहा है, ये वाली जो रे है टॉप मोस्ट, ये सबसे कम ट्रैवल कर रही है, रिफ्रैक्शन तो हो ही रहा है, इट इज ट्रैवलिंग द लीस्ट इनसाइड denser medium which is the prism. And as you know, refractive index is speed of light by speed of light in the medium, or v is equal to c by mu होता है। mu of glass 1.5 के आसपास होता है। That means speed of light will decrease in glass, and the bottommost ray is traveling the for longest time in the denser medium। तो सेम टाइम में ये कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ये एयर में ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है तो वो ज़्यादा ट्रैवल करेगा। एज अ रिजल्ट, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द टॉप मोस्ट रे वुड बी मोर कंपेयर टू दैट ट्रैवल्ड बाय ए। बात समझ में आ गई है। इसीलिए वेव फ्रंट इस शेप में हुआ है, बिकॉज जो टॉप मोस्ट रे है वो एयर में ट्रैवल कर रही है, एयर में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है तो वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। एज यू कैन सी, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सी, सी ए डैश डिस्टेंस इज लॉन्गेस्ट, बी डिस्टेंस थोड़ा कम है, ए डिस्टेंस से सबसे कम होगा। ये सी ले लिया मैंने, हटाता हूँ उसको मैं। दिस इज सी डैश, सो सी डैश सबसे ज्यादा होगा और ए डैश सबसे कम होगा। उसका रीजन क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इज लेसर इन डेंसर मीडियम। हालांकि टाइम इज द सेम, तीनों वेव्स के, तीनों रे के लिए टाइम ऑफ टू ट्रैवल इज द सेम, बट सी डैश मोर देन बी डैश मोर देन, इज दैट क्लियर। तो अगर कोई प्लेन वेव फ्रंट प्रिज्म से पास करता है तो दूसरा वेव फ्रंट का शेप ऐसा होगा। तो देखा जाए प्रोफाइल बिल्कुल उल्टा हो गया ना, प्रिज्म ऐसा है, वेव फ्रंट ऐसा बन रहा है। नेक्स्ट ले लो, खुद से ट्राई करो, कॉनकेव मिरर। इफ अ वेव फ्रंट इज इंसिडेंट ऑन concave mirror, tell me the shape of the reflected wavefront। वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स में हमेशा तुम ये बनाओगे, डायरेक्शन ऑफ रे हमेशा मार्क करना, तो मार्क्स कटेंगे। ABC is a plane wavefront, find position of reflected wavefront as reflected by the concave mirror, कर लो।
इस बार मीडियम चेंज नहीं हो रहा है। तो कन्वर्जिंग मिरर, तो रेज ऐसे आएंगी, ये रे वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी पोल से, स्पीड ऑफ लाइट विल रिमेन द सेम। दिस प्लस दिस, जहां भी तुम बना रहे हो वो डिस्टेंस इक्वल होगी। मतलब इस दिस टाइम ए डैश विल बी इक्वल टू बी बी डैश इक्वल टू सी सी डैश। सेंटर वाली रे ज्यादा ट्रैवल कर रही है, देखो। बी पहले पी पे पहुंच रहा है, तो बी से पी की डिस्टेंस इज मोर कंपेयर टू ए से ये वाली डिस्टेंस, सी से ये वाली डिस्टेंस। तो बी एज इट इज, जब ए यहां पहुंचेगा तो बी यहीं पे पहुंच पाएगा, राइट। जब सी यहां पहुंचेगा, बी यहीं पहुंच पाएगा, तब तक वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो फिर ये आके फिर आके रिफ्लेक्ट होगा। तो इस बार जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है वो ऐसा कुछ बनेगा, इस बार वो शेप ले लेगा सेम एज दैट ऑफ द कॉनकेव मिरर। दिस इज बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस। यहाँ पे अगर मैं इसको मार्क करता हूँ, तो कहने का मतलब हुआ ए क्यू A dash distance is the same as B P B dash distance, C R C dash distance। इसीलिए ये थोड़ा ज्यादा होगा कंपेयर टू दिस, तो शेप कॉनकेव हो गया उसका। थर्ड इज कॉन्वेक्स लेंस। सर ए क्यू ए डैश नहीं होगा? हम्म। हाँ, ए क्यू है ये, क्यू ही है ये। इस बार कॉन्वेक्स का खुद से बनाओ। ए बी सी, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा प्रिज्म वाला। बी वाली रे will be inside glass for longer time। मतलब सेम टाइम में it will travel lesser। Center ray will pass through denser medium, that is glass, for longer distance। और उसमें denser medium में distance कम हो जाती है। जब डेंसर मीडियम में डिस्टेंस कम हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी, तो ऑब्वियसली बी सबसे कम ट्रैवल करेगा। ए और सी इक्वल ट्रैवल करेंगे, बट ए और सी का डिस्टेंस ज्यादा होगा कंपेयर टू बी। तो क्या प्रोफाइल बनना चाहिए? उल्टा हो गया ना इस बार। मतलब कहने का ये हुआ कि रिफ्रैक्शन में प्रोफाइल चेंज हो जाता है, रिफ्लेक्शन में सेम रहता है। ठीक है। अब कॉनकेव लेंस का बनाओ और कॉन्वेक्स मिरर का बनाओ।
पी क्यू, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए पी ए डैश डिस्टेंस इज इक्वल टू सी क्यू सी डैश एंड इट इज मोर देन बी ओ बी डैश, and reason is that the central ray passes through denser medium for longer time, longer distance, because convex lens thick होता है ना सेंटर पे. पर लॉजिक समझ में आएगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी. नेक्स्ट कौन सा कर रहे हो, कॉन्वेक्स मिरर. तो जैसे कि इन दोनों केसेस के अंदर जिस सरफेस वो इंटरसेप्ट हुआ उसने उसी की शेप ले ली। हम्म. जैसे कि इन दीज टू केसेस द सरफेस विच इट इंटरसेप्टेड विच वाज लाइक द कर्व, उसने उसी की शेप थोड़ी देर बाद जाके ले ली। मैं वही कह रहा हाँ था अच्छा अच्छा, वो ठीक है. कि जिस ठीक चीज है, पे इंटरसेप्ट करेगा उसी की शेप ले लेगा वो। ठीक ठीक ठीक. ओके, थैंक यू। नेक्स्ट इज, कौन सा कर रहे हो, कॉनकेव लेंस बनाओ. इस बार जो एक्सट्रीम रेज हैं, they will be inside denser medium for longer time. They'll travel more in denser medium. उनका distance traveled less हो जाएगा. As you know, it's a diverging lens. तो सेंट्रल रे कम टाइम के लिए डेंसर मीडियम में इसकी डिस्टेंस ज्यादा होगी, उनके डिस्टेंस कम होगी. ए पी ए डैश इक्वल टू सी क्यू सी डैश एंड इट इज लेस देन बी ओ बी डैश. और क्या बचा है, कॉन्वेक्स मिरर बचा है ना, कॉन्वेक्स मिरर करो. Convex mirror is also called diverging mirror. इस बार मीडियम चेंज नहीं हो रहा है, सेंट्रल रेज ट्रैवलिंग द लीस्ट है ना. जब तक ये वाली रे यहाँ पहुंचेगी, ये वाली रे यहाँ पहुंचेगी, ये रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी तब तक. दैट मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय आफ्टर रिफ्लेक्शन वुड बी, वैसे तो डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए, बट आफ्टर रिफ्लेक्शन ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, बिकॉज अभी ये कम है तो बाद का इसका ज्यादा होगा. दिस इज बी डैश ए डैश. तो अगर से ये बोला था कि जिस
सरफेस को वो हिट कर रहा है, पहली वाली सरफेस, द फर्स्ट सरफेस, बिकॉज लेंस में दो सरफेस होती हैं, मिरर में तो एक ही सरफेस है, तो कॉन्वेक्स को करेगा तो कॉन्वेक्स बन रहा है, कॉनकेव का तो कॉनकेव। लेंस के केस में जो पहली सरफेस है उसका शेप वो ले रहा है, वेव फ्रंट। ठीक है। देन since we have assumed that we have, Huygens proposed that light is behaving as a wave, so we should be able to explain various phenomena on the basis of wave wave nature of light. So there'll be 3-mark question that explain reflection of light using Huygens principle. Explain refraction of light using, इसमें दो केसेस हो सकते हैं। सर, हाँ, जो कॉन्वेक्स मिरर वाला था, क्या? ये ए क्यू डैश क्यू भाई आवाज नहीं आ रही है। पिछले वाले में इसमें तीनों डिस्टेंस इक्वल हैं, बिकॉज द मीडियम इज नॉट चेंजिंग ना, तीनों डिस्टेंस इक्वल है इसमें। फिफ्थ वाले में तीनों डिस्टेंस इक्वल हैं बिकॉज मीडियम चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है। इसमें दो केसेस हो सकते हैं दैट दे माइट स्पेसिफाई, अगर स्पेसिफाई नहीं करेंगे रेयर टू डेंसर कर लेना, रेयर टू डेंसर, एंड सेकेंड इज डेंसर टू रेयर। इनमें से एक क्वेश्चन आएगा पक्का। एक्सप्लेन, हम देख लेंगे अभी लास्ट ईयर आया हुआ है, नहीं आया हुआ है। अगर रिफ्लेक्शन लास्ट ईयर आएगा तो रिफ्रैक्शन आ सकता है इस बार, एंड द वाइस वर्सा। तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन करते हैं। There's a mirror like surface like this, draw two normals, एंड मैंने इसका एक शॉर्टकट भी बताया था कि तुम एंगल ऑफ इंसिडेंस अप्रोक्सीमेटली 60 डिग्री ले लेना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंसिडेंस, सॉरी, अप्रोक्सीमेटली 60 डिग्री लेके, 60 डिग्री नहीं है, इस शॉर्टकट में तो बता रहा हूँ पहले। एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री ले लो, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। के भी आई होगा, दोनों पैरेलल रेज हो जाएंगी। दिस इज पॉइंट ए, वेव फ्रंट हमेशा रे के परपेंडिकुलर होता है। दिस इज ए बी विच इज इंसिडेंट वेव फ्रंट, टेक आई एज मोर देन 60 डिग्री एंड ड्रॉ टू पैरेलल इंसिडेंट रे। ए बी यहाँ पे है, इस इंसिडेंट वेव फ्रंट, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। As shown in figure, this is a mirror-like surface, mm dash, and wave front
AB is incident on the reflecting surface at an angle of incidence I. एंड ये मन में ध्यान रखना कि I more than 60 लेना ताकि डायग्राम क्लियर बन जाएगा उससे. I is angle of incidence. अब क्या होगा? B reaches to B dash, ये पॉइंट B dash है, traveling a distance c delta t. So speed of light in air is c and the time taken by the wave to travel is delta t. So B reaches to point B dash in time c delta t. Using Huygens principle, Huygens का नाम जरूर डाल देना उसमें. Using Huygens principle, we need to find position of A dash. कि point A dash कहाँ होगा? अगर suppose ये mirror like surface नहीं होता, A dash would have been here. Parallel wavefront बन जाता. But A dash इस side में नहीं आएगा. A dash उस side में आएगा. तो using Huygens principle, we need to find position of the new wavefront after delta t time. A dash locate करना है. बट हमारा शॉर्टकट चीटिंग मेथड क्या था? मेथड हमारा ये था, हमने आई ले लिया 60 से बड़ा, उतने ही एंगल पे हम दो रेज रिफ्लेक्ट बना देंगे सेम एंगल पे. ठीक है, तो दिस इज एंगल ऑफ, जितना तुमने आई लिया था, सपोज तुमने 65 डिग्री आई लिया था, 65 डिग्री आर ले लेना. ये दोनों रेज शुरू में बना देना, लेकिन लिखना क्या वो समझ लो. तुम लिखोगे दैट ए रीचेस टू ए डैश, या ये मत लिखो, पहले लिखोगे दैट point A will also travel c delta d distance. So using Huygens construction, what we do? We take A as center and cut an arc over of length c delta t. यहाँ पे हमने एक आर्क कट किया c delta t का. वैसे देखा जाए तो तुम क्या करोगे, जितना b डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस यहाँ पे मार्क कर लेना. बट यू राइट दैट by taking A as center, we cut an arc of length c delta d distance or c delta d radius. And then draw a tangent to it from B dash. And then draw a tangent to it from B dash. And the point it touches is marked as A dash. So dash, A dash is C delta T. And thus A dash, B dash is the reflected wavefront. तो तुम्हें क्या करना है, 65 डिग्री या 60 डिग्री का दो रेज बना के रिफ्लेक्ट कर देनी है. इंसिडेंट वेव फ्रंट को नॉर्मल बनाओगे, अगर एंगल छोटा लोगे तो ये और ये दोनों सुपर इम्पोज हो जाएंगे, बहुत घिच-पिच डायग्राम बनेगा. ये और ये लाइन दोनों सुपर इम्पोज हो जाएंगे अदरवाइज. तो टेक दिस एंगल टू बी लार्जर. अब हमारा जो काम है, हमें ये प्रूव करना है आई इज इक्वल टू आर. तो आई इक्वल टू आर कैसे प्रूव करोगे? अब दो ट्राइंगल तुम्हारे सामने हैं, ये एंगल 90 डिग्री है. लुक एट द ट्राइंगल्स ए बी बी डैश एंड द राइट ट्राइंगल ए डैश बी डैश. देखो जरा, आर दीज टू ट्राइंगल सिमिलर? एक तो एंगल देखो इसका, एंगल ए बी बी डैश इक्वल टू एंगल ए डैश बी डैश इज 90 डिग्री. इनफैक्ट ये दोनों कॉन्ग्रुएंट भी प्रूव कर सकते हैं ना हम लोग. कॉन्ग्रुएंट भी प्रूव कर लो. ए बी डैश कॉमन आ गया दोनों ट्राइंगल में, और दूसरा ए डैश इज इक्वल टू बी डैश इक्वल टू सी डेल्टा टी. सो द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. तो वंस यू प्रूव द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय सीपीसीटी, क्या होगा?
ये देखो जरा, ये एंगल आई है तो ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस आई, है ना। इस ट्रायंगल में ये 90 माइनस आई, ये 90, तो ये आई हो गया। देख लो जरा इसको ढंग से। ये एंगल आर है, तो ये 90 माइनस आर, ये 90, तो ये वाला एंगल आर हो जाएगा, ये वाला। ये 90 माइनस आर, ये 90, तो ये एंगल आर हो जाएगा। तो बाय सीपीसीटी, एंगल बी ए बी डैश इक्वल टू एंगल ए डैश बी डैश ए। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। So that's how you prove the law of reflection of light using Huygens principle. I would suggest कि तुम अभी इसको एक बार ड्रॉ कर लो खुद से। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 65 डिग्री लेके, 65-70 लेके बनाओ। डिस्टेंस ए बी डैश को बहुत ज्यादा मत लेना, बहुत बड़ा डायग्राम बनेगा अदरवाइज। कर लो। तो हम्म। जब हम बी बी डैश इज इक्वल्स टू सी डेल्टा टी लिखते हैं उससे पहले हमें कोई थ्योरी लिखनी होती है फिर नहीं? और थोड़ा सा लिखो, देयर इज अ मिरर लाइक सरफेस एम एम डैश, एंड देयर इज अ इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी, and the हाँ जी। rays are incident and angle I. बस इतना लिख लो as shown in the figure. Because I had given my school teacher like past year questions की चेक करके दे दो, and he हम्म। has like marked कि इस पे एक्सप्लेन वगैरह करो। मैं आपको फोटो भेज देता हूँ कि उन्होंने क्या लिखा है। क्या करो? He has like marked it and said कि explain। हम्म। तो इसके पहले फिर थ्योरी लिखनी पड़ेगी। देखो एक मिनट। हाँ, थ्योरी तो लिखोगे ना। अब टीचर को क्या पता V1 क्या है, V2 पर क्या है, ठीक कौन है सा सर। मीडियम डेंसर है, कौन सा रेयरर है। और इसमें तो देखो दोनों ही इक्वल लिख रही है डिस्टेंस, बी बी डैश भी सेम है, ए डैश भी इक्वली आ रहा है। ये रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयरर है, कुछ भी नहीं। और एयर टू डेन। तो फिर पता ही नहीं लग पा रहा कौन सा मीडियम रेयर है, कहाँ लिखा है तुमने। ठीक है सर, आई रेड दैट। देखो 3 मार्क में अदरवाइज 2 मिलेंगे।
इस डायग्राम के साथ तुम्हें आउट ऑफ 3 विल गेट 2 ओनली। ओके। तो वो जो मैं लिखवाता हूँ ना कहानी शुरू की, वो सब लिखनी जरूरी है। एक्सप्लेन कर दो, V1 स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर रेयरर, V2 स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर, लाइक दैट। बहुत ठीक है सर। जरूरी। इसमें कितने ओके। मार्क्स मिले तुम्हें? मैंने चेक करने के लिए जैसे ना मार्क्स नहीं दिया, बस उन्होंने यही अच्छा। लिखा है एक्सप्लेन। हाँ, उन्हें सही कहा, उन्होंने बिल्कुल सही लिखा है। तुमने देखा होगा मैं हर डेरिवेशन में बहुत सारी थ्योरी लिखवाता हूँ ना, इसीलिए उसका रीजन अच्छा ही ठीक है यही है। सर। यू नीड टू राइट दैट। ओके सर। जिसमें मैंने लिखा ना, आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर लिख दो, आर इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट, ए डैश बी डैश इज रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, सारा लिखो। ठीक है सर। बन गया सबका डायग्राम? चलो अब नेक्स्ट करते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट व्हेन द रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम rarer to denser medium, because question में they might mention that explain law of refraction, Snell's law of refraction when the ray is traveling from denser to rarer or rarer to denser. Rarer medium, denser medium. यहाँ पे तुम लिख सकते हो V1 या CV लिख सकते हो, या V1 ही ले लो, स्पीड ऑफ लाइट। Refractive index of rarer, RI तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया, वहां पर तुम पूरा लिखना। इतना सारा कुछ लिखोगे तुम्हारा आधा पेज तो वैसे ही भर जाएगा। आधे पेज में डायग्राम बना देना, गुड इनफ टू गेट 3 मार्क्स। क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी भी जरूरी है। फिर लिखोगे लाइक दिस, लाइक कंसिडर waves traveling from rare to denser medium such that AB is incident wave front and angle of incidence is I.
इतना जरूर लिखोगे पहले। कंसिडर a wave traveling from rarer to denser medium such that angle of incidence is I and AB is incident wavefront. इस बार तुम एंगल 30 डिग्री के आसपास ले लेना। दो नॉर्मल बनाओ, एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस अप्रोक्सीमेटली 30 के आसपास ले लेते हैं। दो पैरेलल रेज, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, इतना बना लिया। एंड देन यू नो वेव फ्रंट इज ऑलवेज नॉर्मल टू इट, नॉर्मल टू इंसिडेंट रेज, ये तुम्हारा वेव फ्रंट हो गया ए बी। एंगल 45-30 के बीच में ले सकते हो। अब वैसे तो हम क्या करेंगे, चीटिंग करेंगे डायग्राम बनाने के लिए। तो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होंगे, यू नो दैट व्हेन अ रे ट्रैवल्स फ्रॉम रे टू डेंसर इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो 20 या 15 डिग्री पे एंगल को और छोटा करके हम रिफ्लेक्टेड रिफ्रैक्टेड रे बना देंगे। अगर हमने सपोज वो 45-30 के बीच में एंगल लिया तो इसको थोड़ा और उसका आधा कर दो, बिकॉज रे विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ जाएगा। उस एंगल का आधा इधर कर देना। अब क्या होगा, और देन यू मार्क, हमें बेसिकली ए डैश ढूंढना है। जितना डिस्टेंस बी बी डैश है उसका डबल या डबल से थोड़ा सा कम यहाँ पे ए डैश मार्क कर लो। और इट शुड अपीयर परपेंडिकुलर ऑल्सो ना, परपेंडिकुलर भी नजर आना चाहिए। और ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस ज्यादा ही आएगा। दिस इज ए डैश। लेकिन हम कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे वो देखना तुम। अब एक आर्क भी ड्रॉ करना है तुम्हें यहाँ पे। ए डैश विल बी मोर देन, उल्टा कर दिया ना मैंने, गलत कर दिया। 90 भी नजर नहीं आ रहा है। ये डिस्टेंस बीबी डिस्टेंस का आधा लेना, आधा या आधे से थोड़ा सा बड़ा, तो मतलब इससे कम लेना है। तभी नॉर्मल में देखना, नॉर्मल क्यों नहीं हो रहा है, ये इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए था। नाउ इट्स परपेंडिकुलर, दिस इज ए डैश। वो डेंसर टू रेयर में उल्टा होगा। सो बी रीचेस टू बी डैश ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस v1 डेल्टा t, इक्वेशन नंबर 1 इन रेयर मीडियम। तो ये लाइन वहां पे लिखनी थी तुम्हें, b reaches to point b dash traveling distance bb dash equal to v1 delta t। टू लोग आगे लिखोगे, टू लोकेट पोजीशन ऑफ ए, to locate position of a after delta t time we use Huygens construction, we take help of Huygens construction. Taking a as center, we cut an arc of length v2 delta t. Taking a as center, we cut an arc of length v2 delta t as speed of light, as speed of light in denser medium is v2।
Then draw a tangent from B dash to arc, and this point is marked A dash. We draw a tangent from point B dash to this arc, mark this point as A dash, and A dash equals to V2 delta T, and A dash B dash is रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट. ये हमारा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट बन गया अब. सो ए डैश बी डैश इज अ रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट. हमने क्या किया, शुरू में दो रे ले ली, दो नॉर्मल बना के, ये एंगल 45-30 के बीच में, ये उसका आधा कर दिया, ये 90 डिग्री बनाओगे. ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस में रिलेशन क्या होगा, डेंसर मीडियम में लाइट कम ट्रैवल करेगी सेम टाइम में, तो डिस्टेंस आधा कर देना ताकि उसमें क्लैरिटी आ जाए. वो 90 भी बनेगा. अब ये एंगल आई है, ये 90 माइनस आई, ये 90 तो ये आई हो जाएगा. ये आर है, ये 90 माइनस आर, ये 90 डिग्री, तो ये आर हो जाएगा. तो हमारे पास दो ट्रायंगल आ चुके हैं, दो राइट ट्रायंगल आ गए. एक राइट ट्रायंगल है ए बी बी डैश. इस राइट ट्रायंगल में साइन आई बताओ कितना है. आई के ऑपोजिट परपेंडिकुलर होगा, 90 के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज होगा ए बी डैश. ये 90 है तो इसका ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज हो गया. सिमिलरली इन द राइट ट्रायंगल, ये वाला राइट ट्रायंगल देखो, ए डैश बी डैश. व्हाट इज साइन आर? साइन आर वुड बी आर के ऑपोजिट परपेंडिकुलर ए डैश हाइपोटेन्यूज, 90 के ऑपोजिट ए बी डैश. You all know Snell's law. Find sin A by sin R. ये कट जाएगा. बी बी डैश 1 से ले लो, V1 डेल्टा टी, ए डैश V2 डेल्टा टी. अब V1 by V2 is constant for two given medium. So sin I by sin R is constant for two given medium. Hence, Snell's law is proved using Huygens principle. अब इसका खुद से एक बार दोबारा डायग्राम बनाओ. डायग्राम बना लो सब लोग.
हो गया? अब इसका दूसरा वाला पार्ट करते हैं, जब रेज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर। डेंसर टू रेयर, नॉर्मल n1, नॉर्मल n2, ये डेंसर मीडियम है। स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे v2 ले लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, रेयरर मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट v1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, बना लो इतना। कुछ आधा कप बनाना, कम बनाना। So we know that denser to rarer, ray would bend away from the normal. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 ले लो, उसमें हम 60 कर देंगे, है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री पे ले लो, दो रेज विच आर इंसिडेंट एट एन एंगल 30 एंड नॉर्मल बना के इंसिडेंट वेवफ्रंट ये बन गया 90 डिग्री पे। दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको 30 ले लेना। यू नो दैट डेंसर टू रेयर मीडियम, रे विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाएगी रे। तो इसको फिर 60 ले लेना, इसको तो हम पहले ही बना रहे हैं। देन कहानी घर घर की, बी रीचेस टू बी डैश, ट्रैवलिंग डिस्टेंस v2 डेल्टा टी हो जाएगा इस बार, बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम वी हैव टेकन v2, so it will be v2 delta t। v2 is speed in denser medium. Now to locate position of a after delta t time, we take help of Huygens construction, or we do Huygens construction by taking an arc of length, v1 delta t, v1 delta t, a as center, cut an arc over here. We already, इसका डबल ले लेना, डबल या इससे थोड़ा कम, ये कट एन आर्क जहां पे तुम्हें लगता है परपेंडिकुलर हो रहा है ये वाला, एंड ड्रॉ अ टैंजेंट फ्रॉम बी डैश, दिस पॉइंट विल बी ए डैश। ए डैश बी डैश इज रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, एंड नेचुरल सी बात है, v1 is more than v2, so v1 delta t will be more than v2 delta t, so a डैश bb डैश से बड़ा आएगा।
तो उसको थोड़ा सा डिस्टिंक्टली शो करने के लिए हम डबल ले लेते हैं डिस्टेंस। एंगल 30-60 ले लोगे, काम चल जाएगा। तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे दिखा दो। यहाँ पे जरूरत नहीं है, घिच पिच हो जाएगा नेसेसरी। आर इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये 90 होगा, ये भी 90 था, ये 90 माइनस आर, ये 90, तो ये हो गया आर। ये आई, ये 90 माइनस आई, तो ये आई हो गया। देखो, अब ए बी बी डैश ट्राइंगल में क्या हो रहा है, साइन आई कितना होगा, बी बी डैश बाई ए बी डैश। ट्राइंगल वही रहेगा, दोनों राइट ट्राइंगल वही है, ए ए डैश बी डैश में साइन आर आ जाएगा। सिर्फ लास्ट में यहाँ पे ए बी बी डैश वुड बी वी टू डेल्टा टी, डेंस से मीडियम की स्पीड हो गई, ये रे रखी हो जाएगी, विच इज अगेन कांस्टेंट। Hence, we prove law of refraction when the ray of light is traveling from denser to rarer medium. तो इतना सारा लिखोगे, डायग्राम बनाओगे बढ़िया से, 3 आउट ऑफ 3 मिलेंगे, कोई मार्क्स नहीं कटने वाले हैं। थर्टी सिक्सटी बना लेना डायग्राम में, एंगल 30-60, उसमें 60-30 कर देना। रिफ्लेक्शन में तो इक्वल लेना है, 60-60 अप्रोक्सीमेटली। इसके एक बार दोबारा डायग्राम प्रैक्टिस कर लो।
तुम लोगों का एग्जाम तो 3 दिसंबर को है ना? यस सर। फुल टेस्ट कब दे रहे हो? दो? एक? सर मेरा मंडे को एग्जाम है तो मैं आई थिंक 2 को ही दे पाऊंगा। क्या है? डुअल नेचर नहीं आ रहा है, एक तो तुम्हारा एटम्स न्यूक्लियर नहीं आ रहा है, बाकी तो सारा वही है। हाँ जी सर। डायग्राम बन गया सभी का? नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ लाइट्स एंड phase difference and path difference. Relation between phase difference and path difference. Now this is a wave, one complete wave, and यहाँ से यहाँ तक का distance कितना है इसका? 1 lambda. This is 0, this is pi, and this is 2 pi. So if you write something in terms of distance, इसको बोलते हैं path difference. If you write in terms of angle, it's called phase difference. So 2 pi of phase is equivalent to lambda of path. तो अगर हम मेरे को डेल्टा फाई फेज डिफरेंस मान लो और उसके इक्विवेलेंट डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस है, रिलेशन निकालना है, तो बड़ा सिंपल सा है। डेल्टा फाई बाय 2 पाई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय एक्स बाय लैम्डा। यूजिंग दिस यू कैन कन्वर्ट phase to path and path difference to phase difference. Delta phi here is phase difference, and this is path difference. तुम नॉर्मली यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो। अगर 2 पाई फेज डिफरेंस लैम्डा पाथ डिफरेंस के इक्वल है तो पाई हो जाएगा लैम्डा बाई 2, पाई बाई 4 हो जाएगा लैम्डा बाई 8, लाइक दैट। वैसे भी कर सकते हो, और एल्स यू कैन यूज फॉर्मूला। Suppose we have a wave which is a sin omega t. Another wave has displacement y2, amplitude b, and it is sin omega t plus phi. साइन की जगह कॉस भी दे सकते हैं। तो टू वेव्स आर क्रॉसिंग ईच अदर्स पाथ। सो जहाँ पे वो क्रॉस करेंगे एक दूसरे का पाथ, पॉइंट पे सुपरपोजिशन होगा, मतलब वहां पे रिजल्टिंग वेव का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, दैट्स ए क्वेश्चन। So that displacement is basically given by vector sum of individual displacement. And this is nothing but principle of superposition of waves. When two or more than two waves superimpose on each other, then resulting displacement is given by the resulting displacement is given by vector sum of individual displacements. The resulting displacement is given by vector sum of इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स। तो जरूरी नहीं कि एक दो ही वेव, दो से ज्यादा, तीन भी हो सकती, चार भी हो सकती हैं। तो रिजल्टिंग वेव विल बी दैट, वेक्टर सम होना चाहिए। ए साइन ओमेगा टी, दिस इज बी साइन ओमेगा टी प्लस फाई। फाई क्या है यहाँ पे? इसका फेज है ओमेगा टी, इसका फेज है ओमेगा टी प्लस फाई। सो दोनों का फेज डिफरेंस कैसे आएगा? दिस माइनस दिस। तो द फेज डिफरेंस बिटवीन देम इज फाई। जो हमने डेल्टा फाई लिया है वो यहाँ पे फाई है। देन इन ओवर्स का फिर हमने मैथमेटिकली कैसे किया था इसको? ए साइन ओमेगा टी, इसको ओपन कर दिया, साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस बी
cos ओमेगा टी साइन फाई, साइन ए प्लस बी से ओपन कर दिया था, फिर इन दोनों को क्लब कर लिया, साइन ओमेगा टी कॉमन ले लिया, ओमेगा वाली टर्म, ओमेगा टी वाली टर्म वेरिएबल है, फिर हमने इसको सॉल्व किया था, फिर रिमेंबर ट्रायंगल बना के, दिस इज अल्फा, इसको कॉस में कन्वर्ट करेंगे, दिस इज ए। किसी राइट ट्रायंगल में अगर हाइपोटेन्यूज ए है, एंगल अल्फा है, तो बेस ए कॉस होता है और वो ए साइन होता है, सो वी टेक दिस एज ए कॉस अल्फा, this is a sine alpha, so that way it become one complete sine function. The resulting wave is this. तो a cos alpha बराबर किसके है, a plus b cos phi के, and this is equal to b sin phi, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करोगे तो ये आ जाएगा, जब हमने वेक्टर में किया था वही आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस फाई। तो ये डेरिवेशन भी आ सकता है, स्लाइड चेंज के साथ साइन की जगह कॉस भी दे सकते हैं। सो नेक्स्ट क्लास में हम इसको खत्म कर लेंगे, फिर स्टार्ट विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, एंडिंग द क्लास। Bye, sir. Thank you.